Today we'll discuss the previous topic of polar and non-polar covalent bonds. Now, NCERT question. NCERT question, why BF3 is non-polar boron trifluoride? BF3 is boron trifluoride, is non-polar, yet it has boron BF polar bonds. कह रहा है बोरोन और फ्लोरीन के बीच में कौन से बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड्स हैं. पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी आपका BF3 क्या है? नॉन पोलर. सो द नेट डाइपोल मोमेंट फॉर BF3 इज 0 ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल प्लेनर स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज द सिमेट्रिकल प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ BF3. These fluorine atoms are aligned at an angle of 120 degree to each other. So total angle is 360 degree. 360 degree in one circular plane. 360 divided by 3 is equal to 120 degree. So now the bond angle between these bonds, boron and fluorine, this is 120 degree. This is 120 degree. So the bond angle is here, boron and fluorine bonds is 120 degree. So कह रहा है ड्यू टू इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर. स्टूडेंट ये तो होगी केमिस्ट्री की बात कि ड्यू टू इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0 because their dipoles are cancelled with each other and the net dipole moment shown by BF3 molecule is 0. कह रहा है because of the fact that individual dipole moments cancel out on account of symmetry of the molecule. कह रहा है मोलिक्यूल की सिमेट्री के कारण जो डाइपोल मोमेंट्स हैं, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स हैं, वो आपस में क्या हो गए हैं? कैंसिल हो गए हैं. क्या हो गए हैं? कैंसिल हो गए हैं. एंड नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया इसका? 0. सो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0 ड्यू टू इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर and individual dipole moments cancel out due to symmetry of the molecule. So ये तो हमने स्टूडेंट बात कर दी केमिस्ट्री की कि ड्यू टू इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स कैंसल आउट ड्यू टू इट्स सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द BF3 मॉलिक्यूल इज 0. बट स्टूडेंट हमने फिजिक्स भी पढ़ी हुई है, सो दैट्स व्हाई अप्लाई द फिजिक्स हियर. सो बोरोन, दिस इज फ्लोरीन, this is fluorine, this is fluorine, BF bonds, this is BF bonds. So now student, for example, dipole moment from boron to fluorine, arrow का indicate कर रहा है स्टूडेंट आपका towards more electronegative atom. Fluorine is the more electronegative than boron, so here is partial negative charge and here is partial positive charge. ठीक है स्टूडेंट. So now all are BF bonds, it means dipole moments or all BF bonds are equal. Mu1, say dipole moment is mu1. So now these two dipole moments mu1 and this is mu1 are inclined to each other at an angle of कितना एंगल है स्टूडेंट आपका? 180 डिग्री. सो पहले हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे. इन दो BF bonds के dipole moments का क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट. सो क्या आ गया? A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB cos theta. Cos is 120 डिग्री because the angle between these two dipole moments is 120 डिग्री. So फॉर्मूला क्या आपका रिजल्टेंट का? रिजल्टेंट वेक्टर्स का, if two vectors are inclined to each other at an angle of 120 डिग्री, A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB cos theta. So mu1 स्केयर प्लस mu1 स्केयर plus 2 mu1, this is also mu1 student, both dipole moments are equal. Mu1 square cos 120 degree is equal to minus 1 by 2, this is square root. So this is 2 and 2 cancel, mu1 square cancel. student अंदर का रह गया only mu1 square का square root क्या होगा? mu1. So हमने क्या किया? इस BF बॉन्ड का और इस BF बॉन्ड का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल लिया स्टूडेंट. वो भी क्या आया? mu1. क्या आया? mu1. देख लिया स्टूडेंट आपने. अब मैं ये आपको इरेज करने वाला हूं, फिर से देख लो. हमने इस BF बॉन्ड का और इस BF बॉन्ड का दोनों का डाइपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट निकाल लिया. रिजल्टेंट क्या आया? mu1. these two BF bonds mean these two dipole moments mu1 and mu1 are inclined to each other at an angle of 120 degree and the resultant of these two dipole moments is again क्या आ गया आपका? mu1. so हमने अभी ये निकाल लिया है. इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया था स्टूडेंट, इन दोनों BF बॉन्ड्स का रिजल्टेंट क्या आया था? mu1. ठीक है स्टूडेंट.
इन दोनों का, जो ये बी एफ बॉन्ड है और एक ये वाला बी एफ बॉन्ड है, ठीक है। हमने ये अभी रिजल्टेंट प्रूव कर दिया है। अब स्टूडेंट एक ये वाला थर्ड वाला आपका ये बी एफ बॉन्ड रह गया और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है आपका μ1। अब इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, क्योंकि जो आपके डाइपोल मोमेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, इस तरफ है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इन बिटवीन द टू इंडिविजुअल वेक्टर्स। तो आपके जो वेक्टर्स हैं वो इस तरफ इंक्लाइंड है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, इस तरफ इंक्लाइंड होगा। और क्या होगा मिडल में, बिकॉज दीज टू डाइपोल मोमेंट्स आर इक्वल, सो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कहाँ आएगा, मिडल में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आया μ1। अब स्टूडेंट दीज टू डाइपोल मोमेंट्स अगेन μ1 एंड μ1 दोनों क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया स्टूडेंट आपका μ1 प्लस ऑफ माइनस μ1, क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस क्या ऑपोजिट। नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया आपका 0। सो नेट डाइपोल मोमेंट शोन बाय BF3 मॉलिक्यूल इज 0। सो जितने भी स्टूडेंट आपके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये आप केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ गया, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर उनके बॉन्ड्स इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे BF बॉन्ड सारे क्या थे, इक्वल थे, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा 0, दे आर नॉन पोलर। फिर से एक बार स्टूडेंट समझ लो आप, ये आपका BF था, ये मैं प्रूव कर चुका हूं कि इस BF और इस BF बॉन्ड का they are inclined to each other at an angle of, these two dipole moments are inclined to each other at an angle of 120 डिग्री। एंड जो ये रिजल्टेंट आया था स्टूडेंट वो भी क्या आया था μ1, और वो कहाँ पे आएगा, इन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब ये थर्ड आपका BF बॉन्ड आ गया और उसके डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द एटम। ये आपके नेगेटिव एंड है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, और ये आपका पॉजिटिव आ गया। सो दीज टू μ1 अगेन दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू BF बॉन्ड्स एंड दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस थर्ड BF बॉन्ड। सो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया आपका, दिस इज द μ1 ऑफ, नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया आपका μ1 ऑफ BF बॉन्ड, और ये क्या आया नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ जो आपके ये टू BF बॉन्ड्स इंक्लाइन टू ईच अदर क्या आए थे 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आया था μ1, और ये इस वाले थर्ड वाले μ1 के साथ क्या हो गया कैंसल, नेट डाइपोल क्या आ गया आपका 0। तो इन दोनों का BF बॉन्ड्स का जो रिजल्टेंट आया था स्टूडेंट वो भी क्या आया था μ1, और इस थर्ड वाले का डाइपोल मोमेंट भी क्या है μ1। दोनों μ1 क्या हो गया आपके कैंसल, बिकॉज दिस टू वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू BF बॉन्ड्स एंड दिस इज द μ1 ऑफ थर्ड BF बॉन्ड, एंड नेट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स μ1 एंड μ1 क्या आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज दे इक्वल एंड ऑपोजिट एंड द नेट डाइपोल मोमेंट, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, cancels out and net dipole moment is 0 and the BF3 molecule as a whole is non-polar। जब कि इनके पास पोलर बॉन्ड्स थे, पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी एज ए होल BF3 मॉलिक्यूल क्या आपका नॉन पोलर। सो केमिस्ट्री सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इवन दो दे कंटेन पोलर बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने नोट करना है, जितने भी आपके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं नॉन पोलर, चाहे उनके पास पोलर बॉन्ड्स हैं, इवन दो दे कंटेन पोलर बॉन्ड्स, तब भी वो क्या आपके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स इफ द सराउंडिंग एटम्स स्टूडेंट आपके क्या है सेम। अगर आपके सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तो स्टूडेंट आपका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, बिकॉज कैंसिलेशन नहीं होगी। सो आपके अगर सराउंडिंग एटम सेम है, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है और मॉलिक्यूल्स क्या आपका सिमेट्रिकल, तो वो क्या होगा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपकी कंडीशन आ गई, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इवन दो दे कंटेन पोलर बॉन्ड्स। तो ये मैं प्रूव कैसे किया, फिजिक्स लगा के। ठीक है स्टूडेंट, आप भी लगा सकते हो फिजिक्स, बट लेकिन केमिस्ट्री में ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इवन दो दे कंटेन पोलर बॉन्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दिस इज आल्सो ए एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका, कह रहा है व्हाई CCl4 इज नॉन पोलर येट इट हैज कार्बन क्लोरीन पोलर बॉन्ड्स। अब कह रहा है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट क्या डायरेक्शन आ गई टुवर्ड्स द क्लोरीन, टुवर्ड्स द क्लोरीन।
टुवर्ड्स द क्लोरीन एंड टुवर्ड्स द क्लोरीन. ठीक है स्टूडेंट. सो ऑल दीज डाइपोल मोमेंट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन. सो क्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज and carbon acquires partial positive charge. Student, the net dipole moment for CCl4 is 0 due to its symmetrical planar structure. इसका भी स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट आपका? सिमेट्रिकल प्लेनर स्ट्रक्चर. सिमेट्रिकल क्यों है? ये देखिए आपके सराउंडिंग एटम सारे क्या हैं आपके? क्लोरीन सारे सेम है. अगर सारे सेम है तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसका μ1 है और इसका रिजल्ट इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? μ1. अब दोनों का अगर हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो स्टूडेंट वो भी क्या आएगा? μ1. और कहाँ पे आएगा? इन बिटवीन दीज टू CCl बॉन्ड्स. अब इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकालो. ये आपका CCl है और ये आपका CCl है. इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आएगा स्टूडेंट आपका? μ1, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट μ1 है, इसका भी μ1 है और इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आएगा? μ1. ये मैं अभी आपको प्रूव कर चुका हूं कि अगर दो आपके डाइपोल मोमेंट्स सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वही होगा. और क्या होगा इन बिटवीन? अब स्टूडेंट ये दोनों μ1 एंड ये वाला μ1, ये μ1 आया स्टूडेंट, एक μ1 आया रिजल्टेंट. इन दोनों का CCl बॉन्ड्स का और इन दोनों CCl बॉन्ड्स का रिजल्टेंट क्या आया? μ1. नाउ दीज टू रिजल्टेंट्स, एक रिजल्टेंट इन दोनों CCl बॉन्ड्स का और एक रिजल्टेंट इन दोनों CCl बॉन्ड्स का. दोनों का μ1 आया. दोनों का अगर डाइपोल मोमेंट्स आर कैंसल्ड विद ईच अदर, अगेन नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया आपका? 0. एंड CCl4 एज ए होल इज नॉन पोलर. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल आपका ये दो क्लोरीन एटम्स हैं, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ गया और इन दोनों का डाइपोल मोमेंट्स इसका और इसका इस तरफ आ गया. दीज टू डाइपोल मोमेंट्स आर अगेन कैंसल्ड विद ईच अदर एंड नेट डाइपोल मोमेंट इज 0. सो दैट्स व्हाई अगेन CCl4 इज so dipole moment for CCl4 is 0 and CCl4 molecule as a whole is non-polar. So because of the fact that individual dipole moments cancel out due to its symmetry of the molecule. Again स्टूडेंट आपका अगर molecule symmetrical है मतलब इंडिविजुअल एटम्स आपके क्या है? सेम है, तो वो मोलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल होगा. शेप उसकी अगर सिमेट्रिकल होगी तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट एंड नेट डाइपोल मोमेंट इज 0 एंड होल मोलिक्यूल इज नॉन पोलर. So symmetrical molecules are non-polar even though they contain polar bonds due to symmetry of the molecules and individual dipole moments are cancelled with each other. Next कह रहा है why CHCl3 is polar. अभी स्टूडेंट हमने किया CCl4 is non-polar. आपको ये पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि why CCl4 is non-polar and CHCl3 is polar. और दोनों की शेप्स क्या हैं? सेम. अब स्टूडेंट दोनों की शेप सेम है, दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर हैं. अब लेकिन CCl4 मॉलिक्यूल क्या था? नॉन पोलर. अब कह रहा है CHCl3 क्या आपका? पोलर. कह रहा है नेट डाइपोल मोमेंट फॉर CH3Cl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म. CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म. कह रहा है नेट डाइपोल मोमेंट फॉर क्लोरोफॉर्म इज नॉन जीरो बिकॉज डाइपोल मोमेंट्स ऑफ 3 CCl पोलर बॉन्ड्स. 3 CCl पोलर बॉन्ड्स ये वाले स्टूडेंट, ये कितने हैं? 3 CCl पोलर बॉन्ड्स एंड 1 CH पोलर बॉन्ड. ये भी क्या स्टूडेंट आपका? 1 CH पोलर बॉन्ड. डू नॉट कैंसल ईच अदर. स्टूडेंट वहां पे क्या था? सारे क्लोरीन आपके सराउंडिंग एटम क्या थे? सारे सेम थे. तो इंडिविजुअल इनका डाइपोल मोमेंट और इनका डाइपोल मोमेंट आपस में क्या हो गया? कैंसल. बिकॉज जो डाइपोल मोमेंट इस CCl बॉन्ड्स का आएगा फॉर एग्जांपल μ1, वही डाइपोल मोमेंट इन दोनों CCl बॉन्ड्स का आएगा μ1 एंड दोनों वेक्टर्स आपके क्या हो गए? कैंसल. एंड नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया था आपका? 0. अब स्टूडेंट अगर हम यहां पे देखें क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट्स क्या इज टुवर्ड्स द क्लोरीन. ये देखिए आपकी ये क्या डायरेक्शन ऑफ दिस एरो पॉइंटेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. एरो पॉइंटेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है स्टूडेंट. एंड हेयर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. अगेन ये एरो कहां पे आ गया स्टूडेंट आपका? टुवर्ड्स द कार्बन. अब इन सब की डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट आपकी? सेम है. अगर ये सेम है, ये देखिए ये सबकी डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट? डाउनवर्ड. इट मीन सारे वेक्टर्स क्या आ गए? सेम डायरेक्शन में. इट मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट अब क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0. ठीक है स्टूडेंट. बिकॉज यहाँ पे 3 CCl पोलर बॉन्ड्स का और 1 CH पोलर बॉन्ड का
आपस में डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक सराउंडिंग एटम क्या आ गया, डिफरेंट। जब डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब इनके डाइपोल मोमेंट्स, यहाँ अगर हम ये ले लें कि इन दोनों के डाइपोल मोमेंट्स CH एंड CCl, फॉर एग्जांपल इसका μ1 आ गया, बिकॉज यहाँ पे एक CH है और एक CCl है, और यहाँ पे दोनों क्या हैं, CCl। तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, फॉर एग्जांपल μ1 डैश, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड क्लोरीन बोथ आर डिफरेंट। सो फॉर एग्जांपल इनका रिजल्टेंट CH और CCl का रिजल्टेंट क्या आ गया, μ1। अब यहाँ पे क्या है, CCl, और यहाँ भी क्या है, CCl। इसका फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, μ1 डैश। दोनों डाइपोल मोमेंट्स चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन स्टूडेंट सेम नहीं है, एक μ1 है रिजल्टेंट और दूसरा कौन सा है, μ1 डैश। अब ये दोनों आपस में पूरी तरह कैंसल आउट नहीं होंगे, सो नेट डाइपोल मोमेंट शोन बाय CHCl3 molecule chloroform, so that's why chloroform molecule is a polar, because individual dipole moments are not cancelled with each other, because here one atom is changed। वहां पे क्या था, क्लोरीन, यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन, so that's why individual dipole moments are not cancelled with each other and net dipole moment shown by chloroform, so that's why chloroform is a polar molecule। ठीक है स्टूडेंट। So next कह रहा है why CH4 is non polar yet it has CH polar bonds। अब फिर से क्या आ गया स्टूडेंट, आपके सारे CH bonds आ गए। Now carbon is more electronegative than hydrogen, so this arrow towards more electronegative atom, this arrow towards more electronegative atom, arrow towards more electronegative atom, arrow towards more electronegative atom। ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल इनका और इनका रिजल्टेंट क्या आ गया स्टूडेंट आपका, इन दोनों का रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल ये आ गया, इस तरफ क्या आ गया, μ1। क्यों μ1, क्योंकि ये CH और ये CH है, और इसका भी, ये भी CH है और ये भी CH है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये भी क्या आएगा, μ1, क्योंकि ये भी CH है और ये भी CH है। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो वो भी क्या आएगा, μ1। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, फॉर एग्जांपल μ1 सेम ही आएगा, बिकॉज बोथ आर CH bonds and here is also both are CH bonds, so resultant dipole moment of these two CH bonds and these two CH bonds are equal। and डायरेक्शन देखिए स्टूडेंट आपकी क्या है, ये वाले डाइपोल मोमेंट्स कहाँ आ रहे हैं, इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ आ रहा है, एक वेक्टर इस तरफ आ रहा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इस तरफ, ये आपका μ1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इस तरफ। अब ये दोनों μ1 क्यों आए, क्योंकि बॉन्ड्स क्या हैं, CH एंड CH सेम है, यहाँ भी CH एंड CH सेम है, दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, μ1। एंड दीज टू रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट्स आर कैंसल्ड विद ईच अदर एंड नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया आपका, 0। सो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है, सिमेट्री, बिकॉज ऑल सराउंडिंग एटम्स क्या है आपके, सेम। अगर सराउंडिंग एटम सेम हो गए, then individual dipole moments are cancelled with each other and due to its symmetrical planar structure individual dipole moments are cancelled with each other and net dipole moment shown by CH4 methane molecule is 0। so symmetrical molecules are non-polar even though they contain polar bonds। ठीक है स्टूडेंट। अगर आप फिजिक्स लगा के टीचर्स को समझाओगे तो दैट्स बेटर देन दिस ओरल। दिस इज जस्ट ए सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर केमिस्ट्री, लेकिन स्टूडेंट अगर आप फिजिक्स लगा के समझाओगे तो हो सकता है आपके टीचर खुश हो जाएं। तो फॉर एग्जांपल इन दोनों CH बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ गया, इन दोनों CH बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ गया, दोनों का μ1 आया क्योंकि दोनों CH बॉन्ड्स थे, और यहाँ इनको दोनों का भी क्या आया, μ1, क्योंकि दोनों CH बॉन्ड्स से μ1 आपस में क्या हो गए, कैंसल्ड। सो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स आर कैंसल्ड विद ईच अदर एंड नेट डाइपोल मोमेंट शोन बाय मीथेन मॉलिक्यूल इज 0 एंड एज ए होल मीथेन इज नॉन पोलर इन नेचर yet it has CH पोलर bonds। नेक्स्ट, why CHCl3 means methyl chloride, CH3Cl, this is a methyl and this is a chloride, methyl chloride। कह रहा है नेट डाइपोल मोमेंट फॉर मिथाइल क्लोराइड इज नॉन जीरो। स्टूडेंट क्यों नॉन जीरो, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पिछले वाले केस में क्या था, CH4 सारे हाइड्रोजन थे, अब स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया आपका, एक क्लोरीन, क्या आ गया है,
एक क्लोरीन, इसका मतलब 3 CH पोलर बॉन्ड्स एक CCl पोलर बॉन्ड के साथ, इनके नेट डाइपोल मोमेंट्स कैंसल आउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया है? क्लोरीन। अब कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, इस CH बॉन्ड की इस तरफ और इस CH बॉन्ड की भी स्टूडेंट इस तरफ, और क्लोरीन इज आल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। स्टूडेंट इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी किया है इस तरफ। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इन सब के डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है स्टूडेंट? अपवर्ड। तो नेट डाइपोल मोमेंट अब क्या होंगे? सारे डाइपोल मोमेंट्स आपस क्या हो गए स्टूडेंट? यहाँ पे ऐड हो गए हैं। यहाँ पे कैंसिलेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? बिकॉज ऑल डाइपोल्स आर टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन, अपवर्ड साइड। सो जो आपका ये नेट डाइपोल मोमेंट, दिस इज शोन बाय डॉटेड लाइन, ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट, ये भी कहाँ आ गया? अपवर्ड। क्योंकि जहाँ पे आपके वेक्टर्स होंगे रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। सो रिजल्टेंट वेक्टर्स आपके ऐड हो रहे हैं बिकॉज ऑल वेक्टर्स आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ पे आ गया? इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दैट्स वाई CHCl3 मिथाइल क्लोराइड इज पोलर इन नेचर बिकॉज ऑल डाइपोल्स आर लाई इन द सेम डायरेक्शन, upward direction. So net dipole moment is also in the upward direction. There is no cancellation of dipole moment, so that's why it shows a dipole moment 1.86 dBi and it's a polar in nature. So next question is why NH3 is polar in nature? Ammonia. कह रहा है ammonia is polar in nature. कह रहा है NH3 has pyramidal structure. स्टूडेंट ये pyramidal structure हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसकी स्टूडेंट ये NCERT क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स हैं, सेम यही NCERT वाई NH3 इज पोलर इन नेचर। इस क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स हैं। कुछ हद तक इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लो, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो वाटर की एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका NCERT क्वेश्चन है और ये NCERT क्वेश्चन इस टॉपिक में कवर किया गया है, तो मैं भी यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रेस्ट नेक्स्ट ऑफ द लेक्चर्स में आपको ये कंप्लीट समझ आ जाएगा। सो कह रहा है NH3 हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। पिरामिडल क्यों आई ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विच मेक्स द अरेंजमेंट ऑफ 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स अनसिमेट्रिकल। कह रहा है पिरामिडल स्ट्रक्चर के कारण जो NH बॉन्ड्स की जो अरेंजमेंट है वो क्या आई? अनसिमेट्रिकल। इन ईच NH बॉन्ड नाइट्रोजन इज द नेगेटिव सेंटर because electronegativity of nitrogen is more than that of hydrogen. So that's why nitrogen acquires partial negative charge and hydrogens acquire partial positive charge. So in each NH bond nitrogen is the negative center and hydrogen is the positive center. In addition to 3 NH bonds, nitrogen atom has a lone pair of electrons. Student वैसे तो मैं ये previous lecture में आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल बट दे आर नॉट टेक्स पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर फुली फिल्ड। आपकी क्या कॉन्फ़िगरेशन थी? 1s2 2s2 2p3। अब स्टूडेंट ये आपके जो 2p3 है ये क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। दीज 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मेक 3 कोवलेंट बॉन्ड्स विद 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब स्टूडेंट जो आपका जो 2s2 है ये क्या फुली फिल्ड है? दिस डज नॉट मेक बॉन्ड विद एनी अदर एटम्स, सो this is a lone pair, non-bonding pair of electrons. Non-bonding pair of electron is called a lone pair. So यहाँ पे bond pairs की बजाय ये आपके bond pairs हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन has 3 unpaired electrons and hydrogen has 1 unpaired electron. So that's why 3 unpaired electrons of 3 half-filled orbitals of nitrogen overlap with 3 hydrogen atoms. But remaining क्या बचा आपका? 2s2 lone pair of electrons. इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस शेल में हैं बट दे आर नॉट कंज्यूम इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाई इट इज ए लोन पेयर। ये आपका जो शो कर रहा है स्टूडेंट, ये आपका ये लोब क्या आपका शो कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है इन ईच NH बॉन्ड नाइट्रोजन इज अ नेगेटिव सेंटर एंड हाइड्रोजन अ पॉजिटिव सेंटर। इन एडिशन टू 3 NH बॉन्ड्स नाइट्रोजन एटम हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which also has an orbital dipole moment in which the electron pair is the negative center. ध्यान से स्टूडेंट देखिए, कह रहा है नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ये मैंने बता दिया आपको 2s2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विच आल्सो हैज एन ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी क्या है ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर इज द नेगेटिव सेंटर। स्टूडेंट ये मैं आपको वैसे तो हल्की इंट्रोडक्शन ले लो। स्टूडेंट लोन पेयर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में अपनी एनर्जी यूज नहीं की है। इट मींस लोन पेयर्स आर मोर पावरफुल देन बॉन्ड पेयर। अगर आपको कल को कोई पूछ ले विच आर मोर पावरफुल, सो लोन पेयर्स आर मोर पावरफुल देन बॉन्ड पेयर्स। कह व्हाई? ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड पेयर, दिस इज आल्सो बॉन्ड पेयर, दिस इज आल्सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर। अब स्टूडेंट जब बॉन्ड पेयर बनता है, मैंने आपको क्या कहा था, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, इट मींस बॉन्ड जब बना एनर्जी रिलीज हो गई। अब स्टूडेंट जो बॉन्ड पेयर है उसकी एनर्जी तो रिलीज हो गई है। अब लोन पेयर ने 2s2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड तो बनाया नहीं। जब बॉन्ड नहीं बनाया तो इसका मतलब उनके पास क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अदर देन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर से ज्यादा एनर्जी है। इट मींस लोन पेयर्स आर मोर पावरफुल, मींस मोर have more electron cloud than bond pair. Why? Because these lone pairs are not used in the bond formation. ठीक है स्टूडेंट? So that's why lone pairs are more electronegative than this nitrogen atom, because these electron pairs are not involved in the bond formation. So that's why arrow की डायरेक्शन क्या आ गई स्टूडेंट आपकी, towards the lone pair। यहां पे क्या है, टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हियर इज आल्सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हियर आल्सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। अब स्टूडेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब स्टूडेंट ये तो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन, लोन पेयर, क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जी यूज ही नहीं की बॉन्ड बनाने में। सो दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आ गई स्टूडेंट, टुवर्ड्स द लोन पेयर। इट मींस जब हम लोन पेयर और नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन एज ए पॉजिटिव सेंटर एक्ट करेगा और लोन पेयर आपका एज ए नेगेटिव सेंटर एक्ट करेगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जब हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सेंटर्स को देखा तो नाइट्रोजन क्या एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर, एंड हाइड्रोजन क्या एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव सेंटर। और अगर स्टूडेंट हमने नाइट्रोजन और लोन पेयर को देखा तो लोन पेयर क्या एक्ट कर रहा है, नेगेटिव सेंटर, और यहां पे नाइट्रोजन क्या एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव सेंटर। यहां पे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को देख रहे थे, अब यहां पे किसको देख रहे हैं, नाइट्रोजन एंड लोन पेयर को। तो जब हम नाइट्रोजन एंड लोन पेयर को देखेंगे देन लोन पेयर्स आर more negative center than nitrogen, so that's why dipole moment is towards the lone pair। अब सुन ध्यान से देखिए, सबकी डायरेक्शंस क्या डाइपोल मोमेंट्स की, अपवर्ड, और इसकी लोन पेयर की डायरेक्शन भी क्या, अपवर्ड। इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया स्टूडेंट आपका, अपवर्ड, बिकॉज ऑल दीज डाइपोल मोमेंट्स आर एडेड विद ईच अदर, बिकॉज ऑल दीज डाइपोल मोमेंट्स आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, एंड ऑल वेक्टर्स आर एडेड विद ईच अदर, एंड नेट डाइपोल मोमेंट कहां पे आएगा स्टूडेंट आपका, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए आप, ठीक है स्टूडेंट, वाई इन द अपवर्ड डायरेक्शन पता लग गया। सो दैट्स वाई अमोनिया NH3 इज पोलर इन नेचर बिकॉज ऑल डाइपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑल डाइपोल मोमेंट्स, फॉर एग्जांपल इसका μ1 है, इसका μ1 है, इसका μ1 है, और इसका फॉर एग्जांपल μ1 डैश है। सो सबके डाइपोल मोमेंट्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ऐड होता है, और डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ आपके इंडिविजुअल वेक्टर्स होंगे, और इंडिविजुअल वेक्टर्स किस तरफ हैं, अपवर्ड है। सो ये आपके रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट में क्या आ गया, अपवर्ड, एंड इट शोज ए नेट डाइपोल मोमेंट 1.47 dB। ये आपको स्टूडेंट मैग्नीट्यूड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये आप याद रखो अमोनिया इज ए पोलर इन नेचर। So in NH bond, nitrogen is a negative center and hydrogen is a positive center. But in addition to 3 NH bonds, nitrogen atom has a lone pair of electrons, which also has an orbital dipole moment. Lone pair का भी क्या स्टूडेंट आपका, orbital dipole moment, जिसमें नाइट्रोजन क्या एक्ट कर रहा है एज ए पॉजिटिव सेंटर, एंड लोन पेयर क्या एक्ट कर रहे हैं एज ए नेगेटिव सेंटर।
So that's why it shows net dipole moment, and ammonia is polar in nature. So next कह रहा है why H2O is polar in nature. कह रहा है H2O is a नॉन लीनियर और बेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल. अब स्टूडेंट ये नॉन लीनियर बेंट क्यों है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनकी शेप्स, क्योंकि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स की शेप्स हमने डिस्कस करनी है, ये तभी हम डिस्कस कर लेंगे. कह रहा है ईच हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये एनसीईआरटी में ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक में डिस्कस किया गया है. सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट लीनियर और नॉन लीनियर और बेंट डायटोमिक की हम बाद में देखेंगे, रेस्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन समझो. कह रहा है ईच हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ये तो मैं पता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो क्या आ गया, पोलैरिटी आ गई, डाइपोल मोमेंट आ गया. एंड एज ए डाइपोल मोमेंट ऑल द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ बोथ द एंड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी OH है और यहाँ भी क्या है, OH है. इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्योंकि OH बॉन्ड, दोनों OH बॉन्ड्स हैं. तो यहाँ भी फॉर एग्जांपल μ1 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया μ1. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ड्यू टू नॉन लीनियर शेप दे डू नॉट कैंसल ईच अदर. अब स्टूडेंट यहाँ पे डाइपोल ध्यान से देखिए कहाँ पे है, अपवर्ड. यहाँ भी क्या है, अपवर्ड. इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट अपवर्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट अपवर्ड है. तो स्टूडेंट रिजल्टेंट भी क्या होगा, अपवर्ड. रिजल्टेंट भी क्या होगा. अब यहाँ पे आपके डाइपोल मोमेंट्स कैंसल नहीं हो रहे क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड. तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये आपका जो डॉटेड लाइन शो हो रही है, ये क्या आपका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ये भी क्या है, अपवर्ड. तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आया. वाटर मॉलिक्यूल भी क्या आपका पोलर इन नेचर. और रेस्ट स्टूडेंट इन एडिशन टू 2 OH बॉन्ड्स ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो नाइट्रोजन के पास कितने थे, 1, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2. 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. दीज 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. ये तो स्टूडेंट आपके हाइड्रोजन के साथ क्या बन गए, कोवलेंट बॉन्ड्स, because hydrogen also has 1 unpaired electron. These unpaired electrons of hydrogen and 2py1 and 2pz1, ये आपके ये वाले बॉन्ड्स बन गए स्टूडेंट आपके. अब आपका एक 2s2 बचा हुआ है, इनर शेल को तो आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो 1s2 को. क्या बच गया आपके पास, 2s2 और 2px2. तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 लोन पेयर्स, क्योंकि 2s2 और 2px2 ये फुली फिल्ड हैं और ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे. तो क्या बनेंगे, ये लोन पेयर्स. पता चल गया स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लोन पेयर कितने हैं, 2s2 एंड 2px2. 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं. कौन से, 2py1 एंड 2pz1. ये आपके हैं 2py1, 2pz1 और ये आपका 1s1, 1s1. ये आपका क्या बन गया, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स. अब क्या बचे आपके, 2 लोन पेयर्स. एक आपका ये लोन पेयर आ गया स्टूडेंट आपका, और दूसरा लोन पेयर ये आ गया. ये क्या आपका, एक 2s2 है और एक आपका 2px2 है. 2 लोन पेयर्स आ गए. अब मैंने क्या कहा था, लोन पेयर्स की डायरेक्शन क्या है, जो लोन पेयर है वो क्या एक्ट कर रहा है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर. और यहां भी लोन पेयर क्या एक्ट कर रहा है, एक्ट एज ए नेगेटिव सेंटर. तो इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या आ गई, अपवर्ड. तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, इस वाले डाइपोल मोमेंट्स की, OH बॉन्ड्स की, ये भी क्या थी, अपवर्ड. और लोन पेयर्स के कारण जो डाइपोल मोमेंट आया है उनकी डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड. तो नेट डायरेक्शन क्या आ गई आपकी, अपवर्ड. इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल इज ए स्ट्रांगली पोलर इन नेचर एंड एज डाइपोल मोमेंट इज 1.85 dBi. कह रहा है बट ड्यू टू नॉन लीनियर शेप these dipole moments are not cancel each other, and in addition to 2 OH bonds oxygen atom has 2 lone pair of electrons which also has an orbital dipole moment. लोन पेयर का भी क्या स्टूडेंट आपका, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर एक्ट्स एज ए नेगेटिव सेंटर. तभी ये आपके डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन मैंने क्या बनाई है, अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज जो आपका लोन पेयर है वो क्या एक्ट कर रहा है, एज ए नेगेटिव सेंटर. तो दैट्स व्हाई ऑल डाइपोल मोमेंट्स आर एडेड विद ईच अदर एंड नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, इन द अपवर्ड डायरेक्शन. And all dipoles are add with each other, and net dipole moment shown by H2O molecule is 1.85 dBi and is strongly polar in nature. Next, why SO2 is polar in nature? Same question student,
सल्फर SO2 इज नॉन लीनियर और बेंड डायटोमिक। स्टूडेंट ये नॉन लीनियर बेंड क्यों है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आगे आ जाओ। कह रहा ईच सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ईच सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इज ए पोलर बॉन्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। स्टूडेंट ये तो पता चल गया ना आपको, वाई ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सी शेल को बिलोंग कर रहा है, सेकंड शेल को, और सल्फर कौन सी शेल को बिलोंग कर रहा है, थर्ड शेल को। तो स्टूडेंट थर्ड शेल का एटॉमिक रेडियाई सेकंड शेल से क्या होगा, ज़्यादा। सो इट मीन्स सेकंड शेल वाले का एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, कम। इट मीन्स ऑक्सीजन एटम्स आर स्मॉलर देन सल्फर एटम्स। अब स्टूडेंट जो स्मॉलर एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। स्टूडेंट फिर से सुन लीजिए, ऑक्सीजन कौन सी वेलेंस शेल को बिलोंग कर रहा है, सेकंड शेल को 2p। ये वाला ऑक्सीजन भी कौन सी शेल को बिलोंग कर रहा है, 2p। एंड सल्फर कौन सी शेल को बिलोंग कर रहा है, 3p। सो शेल से हमें क्या पता चल गया, थर्ड शेल, जो थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एटॉमिक रेडियाई क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इट मीन सल्फर का एटॉमिक रेडियाई ऑक्सीजन से क्या है, ज़्यादा। अब जिनका एटॉमिक रेडियाई कम होता है उनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शंस क्या होती है, ज़्यादा। तो मीन्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। So that's why electron pairs are shifted towards oxygen atom, and oxygen atom acquires carry negative charge and sulfur acquires partial positive charge। और डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या आ गई, टुवार्ड्स द नेगेटिव एंड। ये पता चल गया स्टूडेंट आपको, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपके दोनों डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स द नेगेटिव एंड, सेम डायरेक्शन। अब अगर दो वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे इसका मतलब सल्फर ऑक्सीजन डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल नहीं होंगे, और नेट डाइपोल मोमेंट वो भी क्या आ गया, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिकॉज आपके वेक्टर्स क्या हैं, आपके वेक्टर्स आपके ऐसे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी फिजिक्स है। ये फॉर एग्जांपल डाइपोल μ1 आ गया, इसका भी कितना आ गया μ1, बिकॉज यहाँ पे ये भी सल्फर ऑक्सीजन है, ये भी सल्फर ऑक्सीजन है। और नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स की अगर डायरेक्शन यहाँ पे होगी तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड। तो इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स क्या होंगे, ऐड हो गए, बिकॉज यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम है। सो ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। सो दैट्स व्हाई SO2 मॉलिक्यूल इज आल्सो पोलर इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट। नाउ कह रहा है पोलर मॉलिक्यूल्स, कहता है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग पोलर बॉन्ड्स आर नॉट ऑलवेज पोलर। ये मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स क्या थे, नॉन पोलर। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है स्टूडेंट, आपका CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा, इनके पास पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी ये सारे क्या थे, नॉन पोलर। कह रहा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब क्या आ गया, कह रहा इफ द पोलर बॉन्ड्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली, चाहे बॉन्ड्स आपके क्या हैं, पोलर हैं, लेकिन अगर वो उनकी शेप क्या है, उनकी अरेंजमेंट क्या है पोलर बॉन्ड्स की, सिमेट्रिकल, देन पार्शियल चार्जेस कैंसल आउट, मींस डाइपोल मोमेंट्स आर कैंसल विद ईच अदर, एंड नेट मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा आपका, नॉन पोलर। ये मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है, ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ गया, ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ गया। अब दोनों का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या सेम, रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो, बिकॉज दीज टू डाइपोल मोमेंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अगर तो आपके पोलर बॉन्ड्स, स्टूडेंट ये आपके क्या थे, पोलर बॉन्ड्स, दोनों क्या हैं, सिमेट्रिकल, दोनों क्या हैं, सिमेट्रिकल, उनके डाइपोल मोमेंट्स आपस में क्या हो गए हैं, कैंसल। इट मीन जो सिमेट्रिकल शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, चाहे उनके पास क्या है, पोलर बॉन्ड्स। अब क्या आ गया, पोलर मॉलिक्यूल्स, कहता है इफ द पोलर बॉन्ड्स आर अरेंज्ड एसिमेट्रिकली, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, देन द पार्शियल चार्जेस डू नॉट कैंसल आउट एंड द मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पे क्या है आपका जो डाइपोल मोमेंट है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर में, और दोनों के डाइपोल मोमेंट्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, टुवर्ड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो एसिमेट्रिकल शेप होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपके, पोलर, क्या हैं, पोलर। सो क्या रिजल्ट निकला, चाहे पोलर बॉन्ड्स हो, अगर शेप सिमेट्रिकल हो तो वो क्या होगा, नॉन पोलर, और अगर शेप सिमेट्रिकल हो तो वो बॉन्ड क्या होगा, ये नॉन पोलर है सिमेट्रिकल शेप, और ये पोलर है एसिमेट्रिकल शेप वाला मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट। So symmetrical molecules, कहता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री द मॉलिक्यूल्स दैट हैव पोलर बॉन्ड्स, चाहे उनके पास पोलर बॉन्ड्स हैं,
आर ओवरऑल ए नॉन पोलर। ओवरऑल क्या है स्टूडेंट, वो नॉन पोलर, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसल आउट और बैलेंस आउट। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर, CCl4 नॉन पोलर, BF3 नॉन पोलर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सब ये क्या है, सारी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सब तरफ क्या है फ्लोरीन, यहाँ पे CCl4 में सब तरफ क्या है क्लोरीन, सबके डाइपोल मोमेंट्स क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स कैंसल। यहाँ भी क्या दोनों तरफ ऑक्सीजन, डाइपोल मोमेंट्स क्या हो रहे हैं, कैंसल। सो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के पास चाहे पोलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन ओवरऑल वो क्या हैं, नॉन पोलर। नेक्स्ट, asymmetrical molecules. If a molecule has polar bonds, कह रहा पोलर बॉन्ड्स हैं, एंड देयर इज नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है टू कैंसल आउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, नो सिमेट्री टू कैंसल आउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, मीन इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसल आउट नहीं होंगे, एंड मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, पोलर। आपको आप वाटर आ गया, तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, अपवर्ड, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो, तो वाटर इज पोलर इन नेचर। NH3 ये भी क्या है, पोलर इन नेचर, डिस्कस कर चुका हूँ। HCl ये भी क्या है, पोलर इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ आपके डाइपोल मोमेंट्स नहीं हो रहे, सो नेट डाइपोल मोमेंट शो हो रहा है, सो दैट्स व्हाई एज ए होल दे आर पोलर इन नेचर। अब कह रहा है पोलैरिटी बेस्ड ऑन बॉन्ड टाइप्स। इफ द कंपाउंड हैज ओनली, कह रहा है अगर आपके कंपाउंड के पास क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो और डायटोमिक है, वो क्या होगा, नॉन पोलर। जैसे आपका H2 है, O2 है, Cl2 है, वो क्या है आपका, नॉन पोलर। इफ द कंपाउंड हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड द चार्जेस आर सिमेट्रिकल, ये भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपके मॉलिक्यूल की शेप क्या है, सिमेट्रिकल, चाहे वो पोलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन एज ए होल मॉलिक्यूल का होगा नॉन पोलर। इफ द कंपाउंड हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड शेप क्या उसकी, एसिमेट्रिकल, तो कंपाउंड क्या होगा आपका, पोलर। So polarity based on shape. कह रहा है after determining the bond type, it is necessary to draw the Lewis structure to determine the shape of the molecule. If there is symmetry with the charge, अगर आपकी shape क्या symmetrical shape है, तो compound क्या होगा स्टूडेंट आपका, non polar, because individual dipole moments are cancelled with each other and the net as a whole molecule is a non polar. And if there the charges are asymmetrical, means shape क्या आपकी asymmetrical, then the dipole moments are not cancelled with each other and the net as a whole is compound is a polar in nature. सो पोलैरिटी बेस्ड ऑन अ शेप, तो क्या कह रहा है स्टूडेंट आपका, ध्यान से देखिए, जो पहले HCl है वो क्या है, पोलर, CCl4 क्या है स्टूडेंट आपका, नॉन पोलर, NH3 क्या है आपका, पोलर, CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म क्या है आपका, पोलर, एंड BF3 क्या है आपका, नॉन पोलर। ठीक है, सॉरी BF3 क्या है आपका, नॉन पोलर। तो जिनकी शेप्स क्या हैं सिमेट्रिकल, वो क्या है, नॉन पोलर, और इनकी शेप्स क्या हैं एसिमेट्रिकल, वो क्या है आपके, पोलर। तो ध्यान से देखिए, अगेन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, HF पोलर है, H2O क्या है आपका स्टूडेंट, पोलर, एंड CCl4 क्या है आपका, नॉन पोलर। ध्यान से देखिए शेप्स की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, सिमेट्रिकल शेप्स क्या हैं आपके, नॉन पोलर, एंड एसिमेट्रिकल शेप्स क्या हैं, पोलर। अगर तो जैसे HF है स्टूडेंट, उसमें तो कैंसिलेशन होनी नहीं है, क्योंकि एक ही आपका डाइपोल मोमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या होगा, पोलर। H2O की एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ, CCl4 की एग्जाम्पल भी आपको समझा चुका हूँ। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका पॉइजन्स रूल। स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक आपने ध्यान से देखना है, मैं आपको हर लेक्चर के एंड में बताता हूँ कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर एंड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ये आपके बेसिक चैप्टर्स हैं एंटायर केमिस्ट्री के। और अगर आपको केमिस्ट्री आ गई तो आपका IIT JEE में एग्ज़ाम में रैंक लाना आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी। सो दैट्स वाई कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 2 चैप्टर्स, ताकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सको। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।